آج انصاف لائر فورم کی جانب سے پریس کلب کے اوپر 12 مئی کے حوالے سے ہم ایک احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ 12 مئی 2007 کو ایک فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے ہمارے چیف جسٹس پاکستان جناب افتخار چودھری صاحب کو ہٹا دیا تھا، زبردستی ہٹا دیا تھا۔ تو اس کے لیے ایک تحریک شروع ہو گئی تھی ہماری وکلاء کی اور سیاسی پارٹیوں کی۔ تو 12 مئی کو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے چیف جسٹس پاکستان چودھری افتخار صاحب کو یہاں پر بلایا تھا کراچی میں۔ تو جو ہی وہ یہاں پر ایئرپورٹ پہ پہنچے، یہاں پر اس کی کراچی کی عوام بھی اور پلس کراچی کے وکلاء اس کے استقبال کے لیے روڈوں پہ نکل آئے، لیکن اس ظالم جابر اور ڈکٹیٹر حکومت نے ہمارے وکلاء کے اوپر اور عوام کے اوپر بے دردی سے، ظالمانہ طریقے سے، فسطائیت سے انہوں نے فائرنگ کی، قتل و عام کی، بلکہ ایک جنہ خون کی ایک ہولی کھیلی جس میں ہمارے 56 سے لے کر 60 کے قریب کراچی کی شہری شہید ہو گئے، جن میں ہمارے تقریباً 4 وکلاء بھی شہید کیے گئے اور وکلاء کے دفاتر جلا دیے گئے، وکلاء کو مارا پیٹا گیا، زخمی کیا گیا، سٹی کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، وکلاء کے دفاتر کے اوپر حملہ کیا گیا، جس میں ہمارے وکلاء یہ اب سعید عباسی صاحب اور ایک رحمان شیری صاحب اور ریاض صاحب اور بھی میرے خیال میں ایک اور بھی وکیل تھا جو شہید کیا گیا ہے، جن کے قاتل ابھی تک معلوم نہیں ہو سکے۔ ہم یہاں پر آج پریس کلب کے سامنے کھڑے ہیں، ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ جو 17-18 سال پہلے جو واقعہ ہوا ہے ان کے قاتل ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کے بعد جن اور بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے، 9 مئی کا جو واقعہ ہوا سپریم کورٹ میں یہ ہائی کورٹ میں، جب ہمارے ایک مقبول لیڈر عمران خان صاحب جو پیش ہو رہے تھے، بائی میٹرک کی اپنا جو ایفیڈیوٹ بائی میٹرک کر رہے تھے، وہاں پر ہماری پاکستان رینجر نے اٹیک کر کے بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی وارنٹ کے وہ آئے، شیشے توڑے، اندر سے نکالا، گھسیٹا، گریبان سے پکڑا اور گاڑی میں ڈالا، جس کے اوپر ایک ہمارے پرامن شہریوں کے اوپر فائرنگ کی گئی، جس میں ہمارے 16 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے شہری شہید ہو گئے۔ لیکن اس فسطائیت حکومت نے، اس جابر حکومت نے 9 مئی کا واقعہ پی ٹی آئی کے گلے میں ڈالا۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، جو ہمارے لیڈر کے خلاف ہوا ہے، جو ہمارے مقبول لیڈر عمران خان جو عالم اسلام کا لیڈر ہے، یہ واقعہ انشاءاللہ ہم ان جابر حکومت کے گلے میں ڈالیں گے، اس جابر نظام کے خلاف ڈالیں گے، کیونکہ ہم ایک پرامن شہری ہے، ایک پرامن پارٹی ہے، جو ایک جمہوری پارٹی ہے، اس ملک میں جمہوریت رول آف لا چاہتی ہے۔ تو ہم یہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی ہمارے خلاف ہوا، وہ بھی صرف جو واقعہ ہوا تھا وہ صرف اور صرف خان صاحب کے نشانے پہ تھے، پی ٹی آئی نشانے پہ تھی، اور ساتھ ساتھ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 9 مئی کے اصل کرداروں کو، اور خاص کر 12 مئی 2007 کے جو قاتل تھے، جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جائے اور اس کی تحقیقات کیا جائے کہ یہ واقعہ کس نے کیا ہے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر انصاف لائر فورم کراچی ڈویژن کے کیبنٹ اپنے پورے ممبران کے ساتھ اور وزران کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے ساتھ آئی ایف سندھ کے جنرل سیکرٹری منظور بھٹا صاحب بھی موجود ہے، اور آئی ایف سندھ کے میڈیا سیکرٹری شاہدہ کمال صاحب بھی موجود ہے۔ ہمارا مقصد یہاں آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ 12 مئی 2007 کو پاکستان کے شہریوں کے اوپر اس وقت کے جابر اور ظالم حکومت نے جو ظلم کے جو ریکارڈ توڑ دیے تھے، اس کے خلاف ہم یہاں پر احتجاجاً کھڑے ہیں۔ آج تقریباً 17 سال گزرنے کے باوجود بھی اس واقعے کا آزادانہ تحقیقات نہیں کیا گیا۔ ہماری وکلاء برادری مطالبہ کرتی ہے موجودہ چیف جسٹس سے اور عدلیہ سے کہ اس کیس کو جلدی سے نمٹایا جائے اور ان قاتلوں کو پکڑا جائے جو کہ دن دہاڑے CCTV فوٹیج کے سامنے پرامن شہریوں کے اوپر گولیاں برساتے رہے، اور کسی نے پوچھا تک نہیں، کسی نے روکا تک نہیں۔ ہم اس واقعے کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس کا تحقیقات کیا جائے اور ان کے ذمہ داروں کو سامنے لیا جائے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 مئی کا دن منا رہے ہیں، اس ظالم دن کے موقع پر
यहाँ कराची में खून की होली खेली गई, जिसमें चीफ जस्टिस उस वक्त के चौधरी इफ्तिखार साहब को एयरपोर्ट पर कराची हाई कोर्ट आने तक, सिंध हाई कोर्ट आने तक उनको कैद कर दिया गया। और इसके बाद तकरीबन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के तमाम जजों को नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद फिर खून की होली खेली गई और तकरीबन 80 के करीब लोगों को इस रोड पर, शाह फैसल रोड पर कत्ल करके उनको फेंक दिया गया। उसके साथ हमारे वकला थे। राजा रियाज हमारा दोस्त साथी कोर्ट आ रहा था, तो ये YMC जो मेरे सामने है, यहाँ जब उसकी गाड़ी पहुंची तो उसको रोक कर मुंह में गोलियां मारकर उसको शहीद कर दिया गया। एक हमारा और साथी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, केमिकल छिड़का और केमिकल छिड़क के उसको आग लगाकर उसको शहीद कर दिया गया। एक हमारा और दोस्त शहरी जब कोर्ट में पनाह लेने के लिए अपने बार रूम में अंदर दाखिल हुआ तो उसको मुंह में गोलियां मारी। आज भी वही हुकूमत है, वही लोग हैं, आज भी वही हो रहा है। अभी 6 जजेस हैं, उन्होंने खत लिखा है अपने इलेक्शन कमीशन, जुडिशल कमीशन पाकिस्तान को कि देखें हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। हमें जो है हमारे घरों तक रियासत के जो नुमाइंदे हैं वो बेडरूम तक पहुंचते हैं, हमारे बच्चों को अगवा करते हैं, वकला को कत्ल करते हैं, जजों को धमकियां देते हैं, उनकी नाजेबा पिक्चर्स बनाते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, धौंस धमकी देते हैं। उन्होंने लिखा है कि क्या अब भी वही 1947 के बाद का निजाम जो अब तक जारी है वही चलेगा या हमें कोई आजादी मिलेगी? जब जज आजाद नहीं है, वकला आजाद नहीं है, कानून और आइन जो है वो मुअत्तल है, तो ऐसी सूरत में आज हम ये जुल्म की जो सियारात है और 12 मई इसकी तजदीद अहद के लिए आए हैं ताकि ये सियारात खत्म हो, ये जुल्म और जबर खत्म हो और इस मुल्क में अमन व अमान कायम हो, कानून की बालादस्ती हो। ये सिर्फ और सिर्फ हम वकला ही कर सकते हैं और वकला के साथ वो जो आला अदलिया है उसके जो बाज़मीर जजेस हैं, वो इंसाफ पसंद जजेस हैं, वो मुल्क को, आम शहरियों को इंसाफ दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी जदोजहद जारी रहेगी जब तक ये सियारात खत्म नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, शाहिदा कमाल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध, अपने तमाम ILF मेंबरान के साथ मौजूद हूँ प्रोटेस्ट के लिए 12 मई के हवाले से, जिसमें हमारे तमाम वकला बरादरी के साथ, ना सिर्फ वकला बरादरी के साथ बल्कि हमारी आम आवाम के साथ जालिमाना रवैया अख्तियार किया गया और उनको बेदर्दी से मारा गया और उनके साथ बहुत ही जालिमाना रवैया अख्तियार किया गया। हमारे चीफ जस्टिस साहब को फैसले को रुकवाने के लिए एयरपोर्ट में बंद रखा गया। ये वैसे जाहिर हो चुका हुआ है कि हमारे 6 जुडिशल जो जजेस हैं उन्होंने जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट में अपने एप्लीकेशन दी है उसमें वाज़ेह है कि उन पे जोर दबाव डाला जाता है, उनके कमरों में कैमरे लगाए जाते हैं और उनको धमकियां दी जाती हैं, उनको मुख्तलिफ तरीके से परेशान किया जाता है जिसकी वजह से उनके जो फैसले होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इसी वजह से आज तक इनका फैसला नहीं हो पाया और ये काफ़ी एंड तक नहीं पहुंच पा रहे। हमारे हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस पे गौर किया जाए और जो ओपन तशद्दुद किया गया है इन ओपन रोड्स पे, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन तमाम चीज़ों को रोका जाए जो हमारे मुल्क के खिलाफ है, जो हमें इंटरनेशनली भी बदनाम करती हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 मई का जो दिन है वो पूरी दुनिया में पता है कि इस दिन कराची जो है लहूलुहान हो गया था और हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इसकी इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं क्योंकि 12 मई को जो कराची का दिन है, कराची पूरा लहूलुहान हो गया था जिसकी वजह से एक सैकड़ों बंदे जो है ना वो शहादत पाई और ये तमाम बंदे जो थे ये कराची के शहरी और वकला थे जिन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है और आज तक ना उन मुल्ज़मान का पता चल सका और ना ही कोई इंक्वायरी हुई। हमारा हुकूमत वक्त से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि इसकी आज़ाद शफाफ इंक्वायरी की जाए और जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने कराची को लहूलुहान किया 12 मई को, उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए।
थैंक यू। 9 मई को जो वाक़या हुआ 9 मई का ये भी बताओ। और 9 मई का जो वाक़या हुआ है ये गैर कानूनी है, इमरान खान के साथ किया गया है, इसकी भी हम मजम्मत करते हैं और इसकी भी इंक्वायरी की जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर इंसाफ लॉयर्स फोरम की तरफ से वकला हजरात 12 मई के हवाले से यहाँ पर जमा हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि 12 मई के वाक़यात 17 साल हो चुके हैं इस बात को 2007 से लेकर आज तक, लेकिन आज तक इनकी फैमिलियों को इंसाफ फराहम नहीं किया गया, जिसके लिए हम अफसोस करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी एक कमीशन बिठाया जाए ताकि इनकी फैमिलीज़ को इंसाफ फराहम किया जाए। हमारे वकला हजरात को चेम्बर में बंद करके उनको जला दिया गया था। 4 हमारे वकला हजरात मौजूद थे वहाँ पर जिनको जिंदा ज़दोकोब करके जलाया गया था। यहाँ तक कि आम पब्लिक जब प्रोटेस्ट के लिए निकली तो 50 से ज़ायद लोग जो थे वो ज़ख्मी हुए और कई की अमवात वाक़ई हुई। बाद में हम इंसाफ करना चाहते हैं क्योंकि हम इंसाफ लॉयर्स फोरम से ताल्लुक़ रखते हैं, एक पीसफुल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। बराए मेहरबानी इनको इंसाफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद आशिक हुसैन शामदानी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंसाफ लॉयर फोरम सिंध, और मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं इंसाफ लॉयर फोरम सिंध के मंजूर भुट्टा साहब, बहुत सीनियर वकील हैं। आज हमारे इंसाफ लॉयर फोरम सिंध ने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी 12 मई की। सबको पता है कि आज से 17 साल पहले एक फ़ौजी डिक्टेटर उस वक्त के परवेज़ मुशर्रफ, उसके कहने पे यहाँ की एक फाशिस्ट पार्टी जो अपने आप को सियासी पार्टी कहती थी, उसने जो है इस रोड पे, इस शहर के रोडों पे खून की होली खेली। उसमें हमारे मुतअद्दिद वकला ज़ख्मी हुए, कुछ शहीद हुए, कराची के शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कई सियासी पार्टियों के वर्कर्स जो है उसमें शहीद हुए। हमारे 4 साथी राजा रियाज साहब, शहरयार शेरी साहब और परवेज़ अशरफ कियानी साहब और अपना हाजी अल्ताफ़ अब्बासी साहब, इन्हीं रोडों पे उनको सरेआम गोलियां मारी गई। इस आज़ाद जुडिशरी के लिए जो कुर्बानियाँ दी थी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वही जुडिशरी उन्हीं कुव्वतों के नीचे लगी हुई है और उन हमारे साथ इन लॉयर्स के साथ और आम कम्युनिटी के साथ, जजेस के साथ भी बदतमीजी की गई थी। जजेस उस दिन हाई कोर्ट आ रहे थे और उनको भी रोका गया। उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हम कोर्टों में जा रहे हैं, हम हाई कोर्ट के जजेस हैं। तो उनको वो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जो मैं यहाँ नहीं कर सकता। कोर्टें तो बंद है, आप किधर जा रहे हो? और उनको भी वहाँ बदतमीज़ी से वापस किया गया। यानी मेरा कहना यह है कि जजेस भी इस 12 मई के विक्टिम हैं, लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ रहा है कि किसी को इंसाफ नहीं मिला, ना हमारे शहीद वकला को, ना सिविल सोसाइटी के शहीदों को और ना इन सियासी पार्टियों के शहीदों को, कारकुन जो उस वक्त शहीद हुए थे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वही सियासी पार्टियां जो आज इक़्तिदार में कल विक्टिम थी 12 मई की, लेकिन आज भी वो इस मसले को दबा के बैठी हुई हैं। खुद जुडिशरी जो विक्टिम थी और उनके साथ जो हुआ वो फाइलें आज दबी हुई हैं। मैं बड़े अफसोस से ये मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी लायर कम्युनिटी भी जो है, जिस तरह बार एसोसिएशन और बार कौंसिल को आवाज़ उठानी चाहिए, वो नहीं उठा रही और आहिस्ता आहिस्ता ये 12 मई वाला वाक़या जो है ये दब रहा है। लेकिन इसको हम दबने नहीं देंगे जब तक कि 12 मई के एक शहीद के साथ इंसाफ नहीं होगा। तो इसी अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो है, जो जुडिशरी जो आएगी और हमारी जो भी हुकूमत आएगी और इंशाअल्लाह जब तारीख इंसाफ की हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह इन ज़ालिमों को कटहरे में ज़रूर लाया जाएगा। शुक्रिया वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खान जमान खटक एडवोकेट है। मैं सिंध हाई कोर्ट और कराची बार में प्रैक्टिस करता हूँ। आज के हवाले से जो आज 12 मई है, जिसमें 2007 में जो 12 मई का अंदोनाक वाक़या हुआ था, जिसमें कराची के 56 शहरियों को बेगुनाह कत्ल कर दिया गया था एक ऐसी जमात ने जो अभी भी हुकूमत का हिस्सा है। आज 9 मई सबको याद है, आज 9 मई के हवाले से हर प्रोग्राम किया जा रहा है, हालांकि 9 मई को कोई पत्ता तक नहीं टूटा था। जो हुआ था एस्टेब्लिशमेंट ने खुद ही करवाया था। 9 मई सिर्फ बहाना था, खान साहब को फंसाना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसाना था। आज हम कहते हैं कि आपने 27 दिसंबर का जो वाक़या हुआ था बेनज़ीर साहिबा के शहादत पे, उस पे 3 दिन तक सिंध जलता रहा, हजारों लोगों के साथ यहाँ पे गैंग रेप हुए, उसकी किसी ने भी तहकीकात नहीं की है। जो 12 मई को 56 लोग शहीद हुए थे,
उसकी भी किसी ने तहकीकात नहीं की। जो मॉडल टाउन में 16 लोग मारे गए थे उसकी तहकीकात किसी ने नहीं की। लेकिन 9 मई सिर्फ एक बहाना बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो साजिशें हो रही है हम उसको कंडेम भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि जो भी बड़े वाक़यात हुए उन सब की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट से कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट के सेटिंग जजेस से कराई जाए, ताकि सब तहकीकात आवाम के सामने आए कि किसने क्या किया है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त मौजूद है, जिसमें सिंध और कराची के ओहदेदार मौजूद हैं, जिसमें GM आज़ाद साहब सीनियर नायब सदर हैं, जोया साहब सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ कराची डिवीजन, और ज़हूर महसूस साहब जो सदर हैं तहरीक इंसाफ लॉयर विंग कराची के, शाहिदा कमाल साहबा ये हमारी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, शाहिदा कमाल साहबा हैं हमारी, ये हमारी सिंध की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, और इसके साथ साथ तमाम हमारे तहरीक इंसाफ लॉयर विंग के साथी मौजूद हैं। आज खास तौर पर 12 मई का एक जालिमाना दिन है, जिस दिन जालिम हुकूमत ने, उस वक्त की रियासत ने, उस वक्त के डिक्टेटर ने, और ये कहा था कि मैं ताकतवर हूं, और उस ताकत के नशे में उसने तकरीबन 80-85 लोगों को इस शरह फैसल पे कत्ल कर दिया था। इसके साथ हमारे वकलाओं को, वकला बिरादरी के अहम साथियों को कत्ल कर दिया था, और इसके साथ साथ वो सिलसिला आज भी जारी है। अभी जो केस है 12 मई का, वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग में है, उसका आज तक फैसला नहीं हो रहा। तो हम ये कहते हैं कि ये जो सिलसिला है जुल्माना रवैये का, रियासत का, ये अब खत्म होना चाहिए। वो इंशाल्लाह आज हम यहाँ सारे उसके पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं 12 मई के खिलाफ, और आज हमने इस हिंदू बिरादरी के साथ और इसके साथ और जमातें भी हमारे साथ मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ पार्टी के लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ लॉयर विंग के लोग भी मौजूद हैं, और इस जालिमाना दिन की मजम्मत कर रहे हैं, और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, और रियासती अदारों से मुतालबा कर रहे हैं कि इस अंधेरी रात को, इस काली रात को, इस जबर और जुल्म को जल्द खत्म करें, और इंशाल्लाह ये जल्द खत्म होगी।